Here in today's lecture of class 9th, we will study about the different types of motion, about distance and displacement. First of all, let us see the different types of motion. Different types of motion. Okay, now in this we have two types of motion. First, it is uniform motion. Now what this uniform motion is? Uniform मतलब कि एक जैसा. हम कह सकते हैं कि if suppose we have an object, अब हम मानते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब क्या है कि हम उसको कह सकते हैं कि क्या है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन है. मतलब वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही तरह से आगे बढ़ रहा होगा. फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमारे पास यहाँ पर एक कार है. ओके, नाउ हियर वी हैव दिस कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है दैट इज 0, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड हियर अप टू 10 मीटर्स. ना अब यहाँ से 0 से 2 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट अस अज्यूम कि ये जो कार है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 1 सेकंड. ओके, नाउ नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 2 to 4 मीटर की, दिस ऑल आर इन मीटर. सो 2 से 4 मीटर तक जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड सपोज इफ दिस डिस्टेंस अगेन इज ट्रेवल्ड इन 1 second. Similarly, if this distance is also traveled in 1 second, this also in 1 second and this also in 1 second, then such type of motion is called as uniform motion. क्योंकि हर equal amount of जो distance है वो equal time में वो जो object travel कर रहा है, this kind of motion is called as uniform motion. Now what second type will be? That is non-uniform motion. अब non-uniform motion में क्या होता है? If the object covers equal distance in unequal interval of time. मतलब यहां पर अगर अपन इसी का एग्जांपल लें, okay, so here we have distance 0, 2, 4, 6, 8 and 10. We have equal amount of distance, but suppose for example from 0 to 2 meter, if the object travels this distance in 1 second, this distance is traveled in 2 seconds, this distance we can say 3 seconds, this distance we can say 2 seconds, and this suppose 1.5 seconds. Means we have equal distance, but the object is traveling all these equal distance in unequal interval of time. So we can say such kind of motion is called as non-uniform motion. Uniform motion के अंदर क्या हो जाएगा? The object is traveling equal distance in equal interval of time, but in case of non-uniform motion, the object is traveling equal distance but in unequal interval of time. That is called as non-uniform motion. Okay, now in the series of this chapter, the next very important topic is distance and displacement. This is you can say very basics of the kinematics. That there is a different branch of physics that is called as kinematics. वहाँ पर distance और displacement बहुत important हो जाता है, because the many different things, many different quantities are related with the distance and displacement. Okay, so first thing is distance. इस डिस्टेंस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पाथ लेंथ. पाथ मीन्स द वे एंड दिस लेंथ मतलब टोटल वो जो पाथ है, वो जितना पाथ एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, दैट कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ, और यू कैन से दैट टू बी द डिस्टेंस. तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर करी है, कितना वो पाथ को कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. और यहाँ पर एक और डेफिनेशन पर डिफाइन कर सकते हैं. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट विल हैव एन इनिशियल पॉइंट, मतलब यहां से वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, और यहां सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज अ फाइनल पॉइंट A and B. This is initial point and this is final point. तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, that is the distance traveled between final and initial point. फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो भी पाथ लेंथ कवर करता है वो जो ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस.
अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है और इट कैन मूव इन this way. In any way the object can travel, but suppose here this is the first path and this is the second path. So when you are calculating the distance along with the path, the distance also changes. It depends कि आपने कौन सा path choose किया है. अगर आपने first path choose किया है, it means this is the total distance covered by the object. If you are selecting the second path, then this is the distance traveled in the second path. That is called as the distance. The total path length or the distance covered between the or the total path length between final and initial point. अब इससे पहले अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमें बताना पड़ेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी. दिस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ व्हाट दिस स्केलर क्वांटिटी इज, ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. क्या पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. मतलब यहाँ पर डिस्टेंस के लिए अपने पास डायरेक्शन मैटर नहीं करता. और यहाँ पर देखो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन. तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक क्या है, हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे. दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता. ओके, नाउ दिस डिस्टेंस इट्स यूनिट इज मीटर. इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर. एंड दिस डिस्टेंस कैन बी ओनली पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी जो भी रहेगी वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती. अब यहाँ पर एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डिस्टेंस कांट बी जीरो. डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपन मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इट हैज कवर्ड सम डिस्टेंस. जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज की ही नहीं है. मतलब द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन. तो वहां पर डिस्टेंस जीरो नहीं कह सकते उसको. वहां पर अपन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन किया ही नहीं ऑब्जेक्ट ने, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है कभी भी जीरो नहीं हो सकती. दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस. अब अगर यहाँ पर अपन सेकंड जो है यहाँ पर पार्ट इसका, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट अ डिस्प्लेसमेंट इज. Now what is this displacement? Displacement, it is the shortest path between initial and final point. मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज द इनिशियल पॉइंट and this is the final point. Now you can see if we have an object which is at point A, initial point, and the object have to move at point B. Now this object can either go in this way, the object can either go in this way, or the object can either go in the straight line. So out of these three, the path which is the shortest one, that will be called as the displacement. So in this case you can say this first path, this is second, this is third one. So out of all these three, this first one is the shortest path, so this is called as the displacement. Okay, now we have seen in case of distance that's a scalar quantity. What about this displacement? This displacement, it is a vector quantity. मतलब यहाँ पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड रहेगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. ओके, नाउ दिस इट्स यूनिट. Its unit is also meter because distance and displacement, they both are somewhere related to the path length. That's why the unit is meter. Okay, now as it is a vector quantity, so it can be positive and negative. Distance क्या था, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, अब वहां पर लास्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा था, दैट द डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो. बट यहाँ पर displacement can be zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. कैसे कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए तब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर अपने पास
एक सर्कल है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट पॉइंट ए, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करता है, मूव करते हुए वापस से पॉइंट ए पर ही आ जाता है। तो क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट भी क्या होगा, यहीं पर होगा, और इसका फाइनल पॉइंट भी यहीं पर होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जहां पर भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और जीरो होगा इस केस के अंदर। ओके, नाउ हियर वी हैव वन इंपॉर्टेंट नोट। जब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। कब, दिस डिस्टेंस कैन बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन है, उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट पॉइंट ए, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में इसको मूव करना है एट पॉइंट बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, टोटल पाथ लेंथ बी से ए तक, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ए से बी तक, और शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या है, ए से बी तक, वो है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इन द straight line. That's why for a straight line motion we can say this distance and displacement both are always equal. Okay, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमें कैलकुलेट करना है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है। ओके, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर जाता है, पॉइंट सी पर जाता है, पॉइंट डी पर जाता है। लेट अस एज्यूम दिस टू बी ऑफ 2 मीटर एंड लेट अस एज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, ए से लेकर सी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट अपन निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस तो क्या होगा, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, ए से बी तक गया, मतलब ए बी प्लस बी से लेकर सी तक हम दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस। ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर एंड व्हाट इज बी सी, BC is 1 meter. So this is total 3 meter. So this 3 meter will be the distance traveled. Now यहीं पर क्या निकालेंगे अपन, displacement. Now what this displacement is? Displacement is the shortest path between initial and final point. Initial point क्या है, point A. Final point क्या है, point C. अब दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ए और सी को ज्वाइन करता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। हमें क्या करना है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर क्या है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग PGT, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये AB इज 2 मीटर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 4 प्लस 1, दैट इज रूट ऑफ 5 मीटर। सो दिस आंसर इज root of 5 meter. This is the displacement. So in this way we can calculate the distance and displacement.